कलाक्ष संगीत सुल्तान राग सुल्तान राग कलाक्ष वचन कलाक्ष वन कलाक्ष करता पाछन सुहा कलाक्ष करता पाछन सुहा कलाक्ष हर्ष कलाक्ष आनंद कलाक्ष हर्ष कलाक्ष कलाक्ष मोहिनी लोल अनुराग कलाक्ष मोहिनी लोल अनुराग कलाक्ष ललित कलाक्ष संगीत सुरताल राग वचन वन कविता पच्छन सुहा कलाक्ष है कलाक्ष आनंद मोहिनी यत्नोल अनुराग Rech Dyed, an eminent poetess, seer and philosopher of Kashmir, who lived through the 20th century, was shrouded in mystery. It was only 12 years after her death that her literary compositions first saw the light of the day. For a while it seemed that the illustrious Lal Dyed of the 14th century had taken yet another birth. Born in Srinagar in 1880, Rech Dyed, literally meaning noble lady, was undoubtedly a loving, unsophisticated woman with tremendous yogic powers. She blessed all,
irrespective of caste or creed, and wished everyone well. She never uttered a harsh word, lived a saintly life, and quietly passed away in 1966. Her real name was Saint Devi. Rech Dyed composed 450 delectables, Vaaks, using the common man's language, which is still in Vaak in the valley. These Vaaks, compiled by a poet and family friend, Prithvinath Sail, were published by her son, Harikrishen Fani, in book form at the end of 1980, her birth centenary year. Actually, the number of Vaaks was much higher, 1,000 according to her son, but many of them were unfortunately lost to posterity due to reasons beyond human ingenuity. The husband of Rech Dyed, Janardhan called Sagar, was also a poet in his own right. He was well versed in Urdu, Persian, Arabic and English, besides Hindi and Sanskrit, and translated several books into different languages while in the service of Nizam of Hyderabad. He died in 1918 when Rech Dyed was only 38. Now she was alone and woebegone by spiritual beacons guided her. She hid her agony of her soul in the deep recess of her heart. The whole burden of the household had suddenly fallen on her weak shoulders. Unmindful of her grief, she plied the spinning wheel round the clock to keep the wolf away. Her son was still in his teens. As the time passed by, she got Harikrishen married. The latter found a job too, but was posted mostly in far-flung areas. By then, Rech Dyed had shown signs of aging, and her daughter-in-law, Dhanwati, was obliged to stay back in Srinagar to look after her. Flying the spinning wheel contributed to be part of the daily routine of Rech Dyed. She poured forth her pent-up anguish in the shape of Vaaks, while the wheel of her life revolved, emanating a low weeping sound. Dhanwati watched this phenomenon with amazement. Whenever she was free from household chores, she recorded in Devanagari what Rech Dyed murmured. This process continued for 30 years. She would slyly deposit the papers in a wooden almirah, layer upon layer, without caring to let anyone know what transpired within the four walls. Rech Dyed passed away, unsung and unwept, at the ripe age of 86, and Dhanwati forgot all about the invaluable treasure lying at the mercy of the moths. 12 years later, while on her deathbed, she mustered courage enough to divulge the secret to her husband, and the 400-odd Vaaks were rescued from the clutches of white ants. Following are some of the representative Vaaks of the poetess in English translation, together with the original, by Pandit T. N. Kaur, courtesy Koshur Samachar. महान संत कवयित्री, दार्शनिक और सिद्धा, जो 1880 ईस्वी में कश्मीर में अनुग्रह रूप में पैदा हुई, मात्र आपके निर्वाण उपरांत जगत में आपकी कीर्ति फैल गई। कश्मीरी वाक काव्य परंपरा के अनुपम योगदान के बारे में पता चलते ही लोग आपको जानने लगे। ऐसी भी मान्यताएं फैली कि साक्षात लल दत्त का अवतरण हुआ लगता है। श्रीनगर में ये योगिनी वैसे तो एक साधारण सी गृहिणी सी थी, पर आपकी आध्यात्मिक सिद्धियों की चर्चा आसपास के कई लोगों में चर्चित रही। आपके सुपुत्र श्री हरिकृष्ण फानी जी ने 1980 में इन सभी बातों को प्रकट किया। कहते हैं कि जब जिनका वास्तविक नाम संपत कुजी था, आपने हजारों वाक कहे थे, मगर समय रहते मात्र 450 ही वाक
हम तक पहुंच पाए। दैद के पति श्री जनार्दन कौल सागर एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि सर्व भाषावेता के साथ साथ आप निज़ाम हैदराबाद के यहाँ कार्यरत भी थे। निज़ाम के यहाँ अपने कार्य के अतिरिक्त वे अनुवाद कार्य भी करते थे। जो वाक हमें प्राप्त हुए वे चुपके से दैद की बहू धनवती ने सुन कर चोरी छिपे लिखे थे और संभाल कर रखे थे। कहते हैं कि ये आज्ञाकारी बहू अपनी सास के वाक सुनती थी और चुपके से लिख कर एक टोकरी में छिपाकर संग्रहित करती थी। यह बात वे किसी से भी नहीं कहती, डरती थी कि कहीं दैद बुरा न मान जाए। धनवती माता भी प्रशंसा की पात्र रहीं, क्योंकि उनके ही संग्रहण से हमें इस वाक संपदा के बारे में पता चला। इसे समय की लीला कहें या एक अनुशासन, उस काल में बड़ों का काफ़ी आदर सम्मान होता था। सर उठाकर ऊंची आवाज़ में बात नहीं हो पाती थी। कहते हैं कि स्वर्गवास होने के पूर्व धनवती ने अपने पति से इस रहस्य को प्रकट किया, पर देर हो चुकी थी। इस काव्य संग्रह का काम सफ़ेद कागज़ के कीड़े कर चुके थे। दैद लाखों की एक ही बात करती थी, जो एक इंसान स्वयं अनुभव करे वही सच्चाई है। वे यही आत्म अनुभव के संदर्भ में कहती हैं। दिव्य ज्ञान तभी आता है, हर एक तभी जान सकता है जो इस सत्य को मात्र एक ही रूप में जाने, अर्थात सत्य एक ही है। विद्वत जन उसी को विभिन्न रूपों में कहते हैं, इसलिए समझदार आत्मज्ञान के पीछे लगे हैं। जैसे तैसे पंडित पृथ्वीनाथ कौल साहिल जी ने हरिकृष्ण फानी जी के साथ मिलकर एक बड़ा प्रयास किया और इस पर एक पुस्तक रूप में एक संकलन प्रकाशित किया। इसी से लोग इनके विषय में जान पाए। आपके वाक काव्य प्रबंधन में कश्मीर की समूची काव्य विधाओं का रूप मिलता है, जो सुनते ही बनता है। काव्य परंपराओं का पूर्णतः निर्वाह हुआ है। सच में जैसे कि साक्षात लल का पुनर्जन्म ही हुआ था। आने वाले दिनों में शायद हम और भी अनुग्रहित हो जाएं और दैद के विषय में और भी जान पाएंगे, और भी वाक सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे और अनुभव करने को भी। माता के इस ज्ञान प्रकाश को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणमाम्यहम गौरी स्वरूपिणी रिस देदी संपत कुजी। ऋषदैद महान संत कवयित्री दार्शनिक श्रद्धा यस 1836 मज कशीर मज अनुग्रहिक पट प्रकटे। मात्र तुहंद निर्वाण पते लोग दुनियास पाई कि यमो क्या द्युत छु कश्र वाक परंपराई द्युतमुत। दपान जानते लल दैद बेय जामुज, बेय अवतार हेत आमुज। श्रीनगरस मज ये यूगिन यथ कन अख आम गृहिणी, मगर तुहंद आध्यात्मिक सिद्धि आस काफी लुकन हजन जवन पे अक्सर छटने यवान। तुहंद सुपुत्र श्री हरिकृष्ण फनी जीन कोर 1930 मज यमन कथन हुन ननर। दपान देदी यमन असली संपत दैद ओस नाव वनमत सास बद वाक, मगर वक्तस अस ताम 450 वाक वातनाव। देदी हिंदिस महाराजस वनान पंडित जनार्दन कौल सागर। यम पान बड़ विद्वान उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी तो संस्कृत जबान हुन ज्ञान थवान। दपान निज़ाम हैदराबाद संदिस नौकरी करान, तो अथ दौरान अनुवाद काम त करान। अम वाक सपद प्राप्त तिम लत पे देदी हंद नशे दर्ज कर्म।